Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 7th February 2022 and I am teaching you chapter number 22, India and the World. India and the world. So, today student we will discuss about different types of maps. Okay, today we will discuss about different types of maps. So, when we are talking about maps, so maps are divided into three categories. That is physical map, political map and thematic map. Okay, so map is divided into three categories. That is a physical maps. Second is the political maps, and next is the thematic maps. So student, when we discuss about the map, then maps are divided into three categories. That is the physical map, political map and thematic map. So one by one we will discuss all these types of a map. So let us start with the physical map. Okay, we will start with the physical. So what does the physical map shows? The physical map tells us the type of land. Okay, physical map tells us the type of land present on the surface of earth. Okay, so what does it mean? It means that when you see the surface of the earth is the same. So answer is no. When we discuss about the surface of the earth, the question arises, is the surface of the earth is same? Then the answer is no. The surface of the earth is not same. Somewhere we see mountains, somewhere hills are present, somewhere we see plateaus, somewhere we see mountains, hills, plateau, plains, valleys, desert and water bodies. So physical map, student, this physical map, when we are talking about the physical map, it tells the type of land which is present on the surface of the earth. So different type of land is present on the surface of the earth. Somewhere we see mountains are very tall, somewhere we see hills, somewhere we see plateaus, somewhere we see plains, valley, desert and water body. Water bodies are sea, oceans and rivers which are present on the surface of the earth. Okay, so this is known as the physical map. So these are the things which we see in the physical map. Physical map means the type of land which is present on the surface of the earth. Now next is the political map. So the political map shows the major cities and towns of a country.
So, or you can also say that political map also show the different states and their capitals and union territories of our country, because we are talking about the political map of our country. So political map also show the different states of our country and the 8 union territories of our country, and it also show the capital of these state, and it also tell you about the by लैंड बाउंड्रीज आल्सो। यह स्टेट से आपके, मान लीजिए आप यूपी की बात करते हैं तो पॉलिटिकल मैप से स्टेट्स और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ का तो पता चलता ही चलता है, और उनके कैपिटल्स का भी पता चलता है। इसके साथ साथ बेटा आपकी स्टेट की किस अदर स्टेट्स के साथ लैंड बाउंड्रीज है, आपके स्टेट के बगल में कौन सी दूसरी स्टेट है, ये सबका पता हम लोग को किससे चलता है बेटा? पॉलिटिकल मैप से। इज इट क्लियर? दैट इज द पॉलिटिकल मैप। अ थीमेटिक मैप, देखो थीमेटिक मैप एज ए नेम इट इंडिकेट, थीमेटिक मैप क्या है? इट इज थीम बेस्ड मैप होता है, ठीक है? कोई भी आप थीम ले लो, इट गिव्स द डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दैट थीम। थीमेटिक मैप्स होते हैं, ये थीम बेस्ड मैप होते हैं, ठीक है? कोई भी आप थीम सेलेक्ट कर लो, उस थीम से रिलेटेड आपको ये पूरी डिटेल नॉलेज दे देगा। जैसे एक एग्जांपल सेट करते हैं, रेलवेज ऑफ इंडिया, रेलवेज ऑफ इंडिया। तो आप रेलवेज ऑफ इंडिया देखोगे तो बेटा इंडिया, पूरी इंडिया में कहां कहां रेलवेज है, आपको ये फुल डिटेल नॉलेज दे देगा, ठीक है? तो क्या, क्योंकि ये थीम बेस्ड मैप है, जो भी हम थीम सेलेक्ट करते हैं उसकी ये आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दे देता है। इसके एग्जांपल मैंने सेट किया, जैसे रेलवेज ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन in different states। सो अब हमारी कंट्री कितने स्टेट्स में डिवाइडेड है स्टूडेंट? 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है। तो ये आपको डिटेल में पूरा डिटेल दे देगा कि इन एवरी स्टेट व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द पीपल लिविंग देयर। अब पूरी 28 स्टेट्स की आपको इस मैप को देख के डिटेल में आपको नॉलेज भी हो जाएगी कि 28 स्टेट्स जो इंडिया की है, हर स्टेट की पॉपुलेशन क्या है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, किस स्टेट में लेस पॉपुलेशन है। तो अरेंज भी आप कर सकते हो पॉपुलेशन वाइज भी, ठीक है? तो जैसे थीम बेस्ड मैप होते हैं, जो भी हम थीम सेलेक्ट करते हैं उस थीम की ये हमें क्या कर देते हैं? डिटेल नॉलेज दे देते हैं। रेलवेज का जैसे मैंने एक एग्जांपल सेट किया, पॉपुलेशन इन डिफरेंट स्टेट्स किया, और आप ये भी लिख सकते हो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, इन यूपी, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। तो ये आपको उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती है, क्या कल्टीवेशन होता है, इसका फुल थीम आपको पूरा बता देगा, ठीक है? तो ये मतलब होता है थीमेटिक मैप का। थीमेटिक मैप इज द थीम बेस्ड मैप, इट गिव यू डिटेल नॉलेज ऑफ द थीम विच यू सेलेक्ट। जो भी थीम आप देखना चाहते हो उस थीम की आपको ये फुल डिटेल नॉलेज दे देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थीमेटिक मैप बोलते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मैप्स की, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ मैप। फीचर्स ऑफ ए मैप। ओके, सो
देखो किसी भी मैप को समझने के लिए दिस फीचर ऑफ मैप जो ये मैंने हेडिंग लिखी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैप में सिंबल्स यूज होते हैं, डायरेक्शन यूज होती है, मैप में कलर यूज होता है, मैप में स्केल यूज होता है। सो दे आर नोन एज द, इन सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ ए मैप। इन चीजों को बिना समझे हम लोग मैप के से डिटेल नॉलेज मैप को हम समझ ही नहीं सकते। तो यही सब क्या है, मैप के डिफरेंट फीचर्स हैं, ठीक है। डायरेक्शन, कलर, साइन, सिंबल, स्केल आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ए मैप, दे आर नोन एज द लैंग्वेज ऑफ ए मैप। तो किसी भी मैप की स्टडी के लिए आपको उस मैप की क्या समझ में आनी चाहिए, लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ ए मैप। लैंग्वेज, व्हाट डज इट मीन, language of map, it means that the symbols, direction, color, scales which are used on the map। मैंने आपको क्लास 4th में भी बताया था, मैप एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है, क्योंकि हम जब भी मैप ड्रॉ करते हैं वी ड्रॉ मैप विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। अब देखो इतनी बड़ी आपकी कंट्री इंडिया है, A4 साइज पेपर में आप उसको बना लेते हो, क्योंकि हम लोग मैप को कैसे ड्रॉ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए स्केल, ठीक है। जैसे कि हमने मान लिया हम कोई मैप बना रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने मान लिया 200 किलोमीटर। अब कोई भी डिस्टेंस जब 2 सेंटीमीटर आएगा तो उसका मतलब होगा 200 किलोमीटर। इस तरह हम लोग बड़ी बड़ी चीजों को, इतने बड़े डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल पार्ट्स में एंड द मैप में दिखा लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैप के साइज स्मॉल होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि जो भी हम मैप ड्रॉ करते हैं वी ड्रॉ मैप विद द हेल्प ऑफ ए स्केल, एंड ड्यू टू दिस फीचर ऑफ द मैप you will get the exact measurement, you will get the exact measurement, ठीक है। ये जो हम लोग बेटा मैप में स्केल ड्रॉ करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्केल की वजह से ही हम लोग जो है बेटा मैप में क्या बताते हैं, इसी की वजह से हम लोग मैप में एग्जैक्ट मैप में हम लोग क्या है, एग्जैक्ट डिस्टेंस का पता चलता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट या एग्जैक्ट डिस्टेंस का हमको किससे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ ए स्केल, ठीक है। तो अब 1 by 1 वी विल डिस्कस द डिफरेंट फीचर्स ऑफ ए मैप। लेट स्टार्ट विद अ सिंबल्स। देखो ये सिंबल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड रीड द माइनर डिटेल ऑफ ए मैप, ठीक है। माइनर डिटेल ऑफ ए मैप, देखो कुछ चीजें मैप में सिंबल से दिखाई जाती हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स में पिक्टोग्राफ पढ़ते होगे, पिक्टोग्राफ में हम लोग चीजों को सिंबल से, क्योंकि बोलेगा 100 एलिफेंट है तो आप 100 एलिफेंट नहीं ना बनाओगे, तो उसी चीज को हम लोग सिंबल से, उसी इंफॉर्मेशन को सिंबल बना के हम लोग उस पिक्टोग्राफ में दिखाया करते थे, मैथमेटिक्स में दिखाते हैं। तो इसी तरह जो मैप होते हैं उसके कुछ सिंबल्स होते हैं। सम कॉमन सिंबल्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 126 आल्सो। सी पेज नंबर 126, सम कॉमन सिंबल्स आर गिवन। अगर मैप में कहीं भी आपको ये एंड आफ्टर दैट देयर इज अ डॉट एंड दिस, अब मैप में आपको ऐसा सिंबल कहीं भी देखने को मिलेगा तो आप इसको देखते ही समझ जाओगे दिस इज द सिंबल ऑफ ए इंटरनेशनल, दिस इज द सिंबल ऑफ ए इंटरनेशनल बाउंड्री, ओके। ये सिंबल जहां भी देखने को मिलेगा तो आप इसको देखते समझ जाओगे दिस इज द सिंबल ऑफ ए इंटरनेशनल बाउंड्री। उसके बाद फॉर एग्जांपल एक स्टार है, दिस इज अ स्टार, दिस इज अ स्टार। अब इसको पूरा ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। दिस इज अ स्टार ऑफ ए ब्लैक कलर, दिस इज अ स्टार एंड इट्स कलर इज ब्लैक। So when this black star is inside the circle, when this black star is inside the circle, then this is the symbol for a capital. This is the symbol for a
capital. So these symbols give the minor details on a map. ठीक है, that is the reason कहीं भी आपको मैप में इस तरह का सिंबल देखने को मिले, ब्लैक स्टार एंड इट इज इनसाइड द सर्किल, तो आप समझ लेना ये कैपिटल होगी. ठीक है, दिस इज अ सिंबल फॉर द कैपिटल्स. इफ देयर आर टू लाइंस, अगर दो लाइन है उनके बीच में येलो कलर है, बिकॉज आई एम टीचिंग विद यू अ ब्लैक मार्कर, तो दैट इज द रीजन मैंने येलो कलर लिख दिया यहाँ पे. ठीक है, so if there are two lines and between these two lines there is a yellow color, then this is a symbol of a highway. Then this is a symbol of a highway. In the same manner, if there are two parallel lines means the lines which never meet, the lines which never meet, that are known as parallel line. If there are two parallel line and they are cross with these types of a line, so this is the symbol. If you see this type of a lines in the map, then it stands for the railways. It stands for the railways. Okay, it stands for the railways. If there is two lines and what is the color inside this, that is a blue color, that is a blue color. So this is the symbol of a, this is the symbol of a river. This is the symbol of a river. Then dark green color, dark green color. So this is a symbol for a forest. This is the symbol for a forest, and the symbol of temple and church is also given. You draw this symbol from the book. So these symbols play a very important role in the map. Now after symbol we are talking about the colors. After symbols, now we will discuss about the colors which are used in the map. Okay, if the color is blue color, so this blue color stands for sea, oceans. Sea and ocean, or you can also say water bodies. Water bodies में rivers भी आ गई, lake भी आ गया, pond भी आ गया, sea भी, ocean सारे आ गए. ठीक है, तो blue symbol stands for water bodies. Okay, now green. If you see green color, then this stands for the plains. Green color है तो green color stands for the plain. And if you see yellow color, so student, area higher than plains, areas higher than plains. Okay, and if you see dark brown color, if you see dark brown color in the map, so this color stands for the mountains. Dark brown color, brown color, so it stands for the mountains. Blue color stands for sea and ocean, green for the plains, yellow areas higher than plains, and dark brown color, it stands for the mountain. And the art of making map is known as cartography. Art of making map is known as cartography.
It is given in one. Did you know? Please underline it. Thank you, student.